Hello everyone. So today we are discussing about the first chapter of Standard 12th Gujarat Board Psychology subject. The chapter number first is a discussion on sensation, attention and perception. This study, this chapter describes what do we mean by sensation, what are its types, what are the meaning of attention and nature and characteristics as well as determinants of attention. It also describes meaning of perception, process, law of perceptual organization, perception of depth and distance. So stay tuned. Before starting, I would like to request you all कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. Friends, as we discussed in chapter number 11, that psychology is all about human behavior, right? साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें सेंट्रल प्लेस पे ह्यूमन बिहेवियर को रखा जाता है. अब ह्यूमन बिहेवियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक डिटर्मिनेंट से बना हो. देर आर मैनी फैक्टर, राइट, विच अफेक्ट्स द ह्यूमन बिहेवियर. वन ऑफ दिस फैक्टर इज आवर बॉडी सिस्टम. बॉडी सिस्टम, उसका कंपोजिशन, उसकी एक्टिविटीज, सेंसेशन experienced by the human body and in-depth understanding of individual affects the human behavior. So in this particular chapter we're going to discuss every aspects of human behavior regarding sensation, attention and perception. In this chapter we are starting with the sensation. Now what is sensation? So here we have a simple definition is that an experience regarding a stimulus through a sensory organ is known as sensation. एक ऐसी चीज है जो हमें एक्सपीरियंस दे जाती है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को बाहर के किसी स्टिम्युलस से. नाउ व्हाट इज स्टिम्युलस? स्टिम्युलस इज any external factor which affects our internal operations, right? For example, any type of external stimulus affect the sense organs, and afferent nerves near the sense organs are excited, and these excitations reaches in a specific area of the brain. For example, हमारे सामने मैगी का एक बाउल पड़ा हुआ है. तो मैगी के बाउल पड़ा होगा तो दो चीजें होगी. फर्स्ट, तो हमारी आंखों से उस मैगी के बाउल को हम देखेंगे, टेस्टी लग रहा है, यमी लग रहा है, खाने की इच्छा होगी, राइट. खाने की इच्छा क्यों होगी? बिकॉज एक नर्व्स जो थी उन्होंने आपके आंखों के थ्रू वो मैसेज कहाँ पे ले गए? आपके ब्रेन में, कि भाई दिखने में अच्छा लग रहा है, खाना पड़ेगा. सेकेंडली हम वी हैव नोज. तो वो जो मैगी का बाउल होगा, उस मैगी के बाउल में मस्त स्मेल आ रही है. अब जब ये स्मेल आ रही है तो हमारे नोज के थ्रू, हमारे नर्व्स के थ्रू वो जाएगी ब्रेन में. तो उसे हम इंटरप्रेट करेंगे कि नहीं यार, ये मैगी बहुत ही टेस्टी होगी, राइट. दैट ड्राइव्स अस टू हैव अ बाउल ऑफ मैगी. दिस इज कॉल्ड सेंसेशन, राइट. आइए थोड़ा उसका डिटेल में डेफिनेशन एंड मीनिंग देखते हैं. Sensation means an experience arising out of this is called sensation, and the sensation is a change in consciousness that arises out of excitation which reaches the sensory centers in the brain. ऊपर हम लोगों ने जो डिस्कस किया है डेफिनेशन, सेम उसी चीज के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टिम्युलस से हमें एक्साइटेशन फील होता है और वो एक्साइटेशन हमारे सेंसरी सेंटर्स तक जाता है हमारे ब्रेन के, दैट इज कॉल्ड अ सेंसेशन. Now there are several physiologists as well as psychologists who divided sensation in the three classes, which are: first is external receptors. The external physical environment is constantly humming with changes in stimulus like light, sound, heat, cold, touch, pressure, chemical air, chemical liquid, etc. मतलब ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नली काम करता है, जिससे हमें एक्सटर्नल स्टिम्युलस प्रोवाइड होता है. दैट कैन बी लाइट, साउंड, हीट, कोल्ड, touch, pressure, anything, right? This affects our different sense organ and hence we can experience different type of sensation. For example, हम यहाँ बैठे बैठे रात को बहुत सारे स्टार्स को देख पाते हैं. उसका रीजन क्या है? कि सन की जो लाइट है वो स्टार के ऊपर पड़ती है और वो स्टार हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से अर्थ पे बैठे बैठे हम
नाइट के दौरान बहुत सारे स्टार्स को देख सकते हैं। एट द सेम टाइम, अगर आप थोड़ा साइंस जानते होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। अगर लाइट नहीं होती तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। तो हियर लाइट इज एन एक्सटर्नल रिसेप्टर, जिसकी वजह से वी कैन सेंस दैट यस देयर इज सम ऑब्जेक्ट ओवर देयर। सेकंड इज बॉडीली रिसेप्टर्स। Just like external environment components, the human body's internal physiological system is responsible for different sensation. जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात होगी, वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग फिजियोलॉजिकल सिस्टम आई हुई है, जिसके थ्रू हमें अलग अलग क्या होता है, सेंसेशन फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर यहाँ पे कॉन्स फॉर विजुअल सेंसेशन एक्साइटेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक हेयर कॉल्स ऑडिटरी सेंसेशन। अगर हमें हमारे सामने कुछ दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल एक रोड है, राइट, आयरन का रोड है, और अगर वो रोड जमीन पे गिरता है तो उससे क्या होगा, उससे हमारे कानों में एक ऑडिटरी सेंसेशन फील होगा। ऑडिटरी सेंसेशन यानी कि हमारा जो कानों में ध्वनि के तरंग है वो हमारे कानों में पड़ेंगे, जिससे यहाँ पे जो नर्वस सेल्स है हमारे ना कानों के अंदर, वो क्या होंगे, थोड़े से एक्टिवेट होंगे। एंड उस एक्टिवेशन से हमारे ब्रेन को एक मैसेज पहुंचेगा कि ओके, देर देर इज वन आयरन रोड जो जमीन पे गिरा, राइट। एंड द थर्ड इज योर इंटरनल रिसेप्टर्स। इंटरनल रिसेप्टर्स में you can see this internal sensation arise because of changes and movement in the organs within the body and in the internal physiological system. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो बॉडीली रिसेप्टर्स थे, उस बॉडीली रिसेप्टर की तरह ही हमारी बॉडी के अंदर देर आर न्यूमरस चेंजेस इन द मूवमेंट्स ऑफ द ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, थर्स्ट। थर्स्ट यानी तरस। हमारा गला सूखने की वजह से हमें थर्स्ट फील होती है, मतलब पानी की तरस लगती है। पेट खाली होने से हमें हंगर यानी कि भूख लगती है। सांस ठीक से नहीं आने की वजह से सफोकेशन फील होता है हमें। दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरनल रिसेप्टर्स, जिसे हमें एक्स वाई जेड टाइप का सेंसेशन फील होता है। सो इट इज ऑब्जर्व दैट different animal species differ in their capacity for different kind of sensitivity. In the same way, we can observe the differences in sensitivity become the different human beings. By special training and experience, human beings can not only develop but also increase this sensitivity. अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे बात करी, ये हर एक एनिमल, हर एक ह्यूमन में डिफरेंटली एबल्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं पाता, जिसकी आंखें नहीं है, तो फॉर उसकी विजुअल जो सेंसेशन है यहाँ पे, वो तो डेफिनेटली वर्क करेगी ही नहीं, क्योंकि विजुअल सेंसेशन के लिए आइज इज मस्ट, एंड उनके पास आइज ही नहीं है। तो इन सच केसेस आपको देखने को मिलेगा कि उनकी जो दूसरी सेंसेस है, फॉर एग्जांपल टच है, या फिर ईयर्स है उनके, या नोज है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, राइट। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपके पास दूसरी अवेलेबिलिटी रहेगी। बट वी कैन ऑल्सो डेवलप अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेंसेस। कैसे? बाय स्पेशल ट्रेनिंग। अगर हम त्राटक जैसी क्रियाएं करेंगे तो हमारी विजुअल सेंसेशन बहुत ही पावरफुल होगी। हम आंखें बंद करके मेडिटेशन करेंगे तो हमारे ऑडिटरी एज वेल एज हमारा जो ऑल फैक्टरी सेंसेशन है वो बहुत ही पावरफुल बनेगा। सो बाय स्पेशल ट्रेनिंग ऑल्सो यू कैन डेवलप सर्टन काइंड ऑफ this sensation, right? So today's lecture will end here. हम लोग यहाँ पे ही हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप आप लोग आज के सेशन में पता चला होगा किस तरीके से सेंसेशन काम करता है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के सेंसेशन एक्सटर्नल, इंटरनल एज वेल एज बॉडी रिसेप्टर्स अलाउ करते हैं, वो आपको पता चला होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कमेंट बॉक्स में जाके डेफिनेटली बताइए कि क्या आपको पता चला इस वीडियो में से, क्या चीज़ आपको ऐसी है जो नहीं समझ आई। वी कैन ऑल्सो डिस्कस ऑन दैट, राइट। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।